Hiring can either scale your business to limits that you can't even imagine or completely destroy your business. See, most business owners think that hiring is about, getting some people who can get some things off their plate and they can do their work. But what you need to understand is real hires are the people who find their own work, get that work done, produce an outcome from that result, and without the business owner even knowing, all that work is done and dusted. You might think that even having a B player or not so good player, what would happen in the company is at least you're not growing the company, but at least company is stabilized because other people are doing the work. But that will not happen. Wrong people can literally destroy your company because what will happen is they'll destroy the culture, they'll push good customers away, and they would drain energy out of you. And the reason most businesses are not able to scale is not because they don't hire. They hire actually, but they hire the wrong way. So this video is going to be about hiring. What mistakes, what problems, what different things you miss out on before hiring the right kind of people, and why you are hiring right now the wrong way, due to which your business is not going forward. You're again and again getting the same kind of people who come in your company, do work for 3 months and leave after that, while you are just chasing new and new people. So stay till the end of this video and take notes because this is really important. If you understand hiring, then you will master delegation with time and you can build automated businesses. So watch the video till the end and do not miss on anything. So what I'll do is I am going to help you with a job posting. So one of the most important part, the reason you get wrong talent with you is because the way you are communicating with them is wrong. So for example, when you get a wrong audience in the webinar and when you change your headline and landing page and copy and everything, do you start getting a better audience? Yes. When you change your ads ki scripting a little bit, you start getting better audience? Yes. Similarly happens with talent. The way your job posting is done is the way you will attract the people that come in your company. If the people coming in your company are in the wrong category, या आपको दिख रहा है इसमें वो दम नहीं है या ये सही नहीं है या फिर उस टाइप के लोग नहीं आ रहे या वो ड्राइव नहीं है, वो एथिक्स नहीं है, if those people are not coming to you, that simply means the message, the posting that you do is not in the right format. So I'm going to share with you the best format you can use for hiring. पहले इसकी फोटो लेना, फिर एक एक करके सब समझाऊंगा डिटेल में. ठीक है, दिस इज अ जॉब पोस्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, दिस इज द फ्रेमवर्क. नाउ हाउ डज इट वर्क? The first thing that you need to post in the whole job posting of post is company overview plus information about the purpose of the company. यानी कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का पर्पस क्या है. Is the purpose of the company to get people results? Is the purpose of the company to drive a movement? Is the purpose of the company to create a change? Is the purpose of the company to make money? Is the purpose of the company to get more people? What is the purpose of the company right now? Be brutally honest about it. The more authentic you are, the more authentic people you get. As simple as that. ठीक है, ज्यादा ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं है जिसमें से दिखाओ कि भाई हम बहुत महान लोग हैं. जो हो ऑथेंटिकली दिखाओगे तो सही लोग आएंगे आपके पास. ठीक है. नंबर 2, एडजेक्टिव्स अबाउट योर कल्चर्स. आपका कल्चर कैसा है, उसके कुछ एडजेक्टिव्स. तो पहला पैराग्राफ क्या हुआ, कंपनी का ओवरव्यू क्या है और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पस ऑफ द कंपनी. नाउ एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ आएगा एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब योर कंपनी. फॉर एग्जांपल, फन टू वर्क इन, वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क, परफेक्शनिस्ट कम टुगेदर. व्हाट इज योर कल्चर लाइक? जैसे मेरे कल्चर में आएगा स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, हार्ड वर्क, 24/7 वर्किंग, लेस हॉलीडेज. दिस इज माई कल्चर. राइट, मेरे सारे टीम मेंबर्स ऐसे ही काम करते हैं बिकॉज वी हैव बिल्ट अ कल्चर लाइक. आपका कल्चर अलग होगा मुझसे. एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रॉन्ग कल्चर, इट्स जस्ट कॉल्ड एज अ मिसफिट कल्चर. रॉन्ग कल्चर कुछ नहीं होता. ठीक है, अभी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कल्चर है भाई लोगों को मानना, अब उनके लिए वो गलत नहीं है. अपन मिसफिट है उसके लिए, समझ में आया? वो मिसफिट है अपने कल्चर के लिए. करेक्ट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड that there's nothing called as a wrong culture, but there's something called as a misfit of a culture. The clear you write culture, the more person will stay with you. The unclear the message of the culture is, the less the person will stay with you. Very clear on this. Right? Be very, very, very clear. जो भी है exactly डाल दो. बेकार कल्चर लिख तो बहुत बेकार कल्चर है. We are a group of toxic people. कोई दिक्कत नहीं है. But be authentic. Because a person like that will only come. ठीक है? Why are you hiring for this position? Not which position are you hiring for? Why are you hiring? क्यों चाहिए ये position? Why this position matters in your company? It should not be just be like कि हाँ we are hiring for a closer, डाल दो फटाफट resume. नहीं. Why you are hiring for it? If I was there, I would write something like
We already have 6 closers working with us. We have good conversion rates and we have a good culture. But what I feel is the cash collection is not as much as I would feel it should be. So looking for a closer who can add value in cash collection while maintaining conversion rates. समझ में आया? क्यों हायर कर रहा हूँ भाई? क्यों क्लोजर चाहिए? क्या रीजन है? क्या वैल्यू एडिशन आएगी उस बंदे की एक्स्ट्रा? नाउ द क्लोजर आई गेट वुड बी द क्लोजर ऑफ कैश कलेक्शन, दैट्स अ गारंटी। तो उसने वो पढ़ लिया कि भाई कैश कलेक्शन वाले लोग चाहिए, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, डाल देता हूँ। अगर वो नहीं होगा खुद ही डाल देगा कि भाई मेरे को सिर्फ क्लोजिंग आती है, कैश कलेक्शन अपने होता नहीं, रहने दो। आई एम लुकिंग अ क्लोजर who is the best at follow-up. We have everything sorted, but the only thing is not follow-up. Looking for a closer who is really good at follow-up, that would be acting as a USP. Khatam. Why are you hiring for that position? Fourth, what does this person looks like? So इधर आप एक पैराग्राफ लिखोगे, according to me, this person looks from a tier 1 city who is 28 years, somewhat old, is a female, whatever you want to mention, is a female, has been working around for 4 years in multiple companies, has got experience for at least 6 years, had worked past in the tech industry. Full stop. मेरी नजर में ऐसा इंसान कुछ दिखना चाहिए इस टाइप का. Put an avatar of that person. ठीक है? The more brief you put that avatar, the better it is. ठीक है? पैराग्राफ लिखने बस, एक के नीचे एक पैराग्राफ. लेट्स से आपको क्लोजर चाहिए कल तक 5. अभी कैसे हायर करोगे? तो देयर इज अ वे ऑफ इट, राइट? जैसे अभी दिव्यांश की टीम सॉर्टेड है, सुधीर जी की सॉर्टेड है, संदीप जी के लोग हायर हो गए हैं. तो देयर सिस्टम ऑफ इट. बेसिकली यूज लिंक्डइन. लिंक्डइन में मल्टीपल टूल्स होते हैं. 600 रुपये 150 एप्लीकेशन आते हैं. 4 रुपए तो भाई कॉस्ट पर लीड महंगी है उससे. ठीक है? सो यू वुड बी स्पेंडिंग 500-600 रुपीज, यू गेट अराउंड 100 एप्लीकेशंस, गुड पीपल. तो बेसिकली उसमें एक सिस्टम होता है वेयर यू यूज लिंक्डइन, यू पुट सम मनी इनटू लिंक्डइन, 300-400 रुपए, यू पुट अ जॉब पोस्टिंग. तो वो जॉब पोस्टिंग क्या डालनी होती है वो अपन समझ रहे हैं अभी, सो दैट यू पुट इट मोर डिटेल्ड. हमारा एक दूसरा टेम्पलेट जो मेरी एचआर भी यूज करती है, इससे जल्दी हायरिंग होती है. ये टेम्पलेट है फॉर डिटेल्ड, मतलब मैं अगर हायर करता हूँ तो ये यूज करता हूँ बिकॉज मेरे को चाहिए एकदम टॉप नॉच बेस्ट क्वालिटी. तो आई यूज दिस. दुर्गा इज अ नंबर्स गेम. वो बोलती है यार मैं एचआर हूँ, मेरे को पता है कैसे करना है, नंबर्स चर्न आउट करो, 1 ना 2 मिलेगा, तुम्हारा काम हो गया. सो दैट बोथ स्ट्रेटजीज वर्क. आई जस्ट वांट द टॉप नॉच पर्सन, और वो कम इंटरव्यू लेने, सो आई यूज दिस. इफ यू द रियल स्ट्रेटजी दैट कॉर्पोरेट्स प्ले इज वॉल्यूम. यू गेट 2000 एप्लीकेशंस, उसमें से आप 2 अपने अच्छे उठा लो, काम हो गया. बात सेम ही है. मेरा ऐसे कि 100 एप्लीकेशन में 2 उठाऊंगा, उसका 2000 में से 2 उठाऊंगा, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स. अभी नेक्स्ट, व्हाट डज पर्सन लुक लाइक? Where could this position lead to? Very important. Because you want the person who has bigger ambition, who has bigger goals in life. You don't want the person who wants to stuck on the same level. That's why you talk about 5th question, which is where could this position lead to? यानी कि आज आपको पोजीशन मिल रही है, ये कहाँ तक जा सकती है? So if today I'm hiring for my e-commerce brands, one of the things I would mention is this position could lead to CEO of the company, because you would be managing logistics right now. तेरे को स्क्रैच से सब पता है. हो सकता है later जाके you can become this person if you have the potential. So where could this position lead to? आप कहाँ तक जा सकते हो if this position is acquired by you? कहाँ इसका max potential खत्म होता है? Because if a person is thinking more than that max potential, you don't want that person as well. वरना वो उस टाइम पे आपको problematic create करेगा. So you want the right person who has the right intention to go towards some point, and you are letting that point go off in your hands also. आप बोल रहे हो मेरी कंपनी में पॉइंट आएगा तब मैं तेरे को दूंगा जो आज ही एप्लीकेशन में आता है. ठीक है? नेक्स्ट, do not apply if, very important, do not apply if you are work from home type. Do not apply if you have night shifts. Do not apply if you are already doing a job. Do not apply if you are agency, जैसे हम ये टाइप करते हैं हर बार. So when we look for a graphic designer, a lot of agencies apply from that. उनको लगता है हमको कुछ मिल जाएगा यहाँ से. So हम clearly लिखते हैं do not apply if you are a graphic agency, capital और bold में, because we don't want those applications. Time waste होगा हमारा. विल स्कैन देम, कॉल करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई, बोलेंगे नहीं हम तो एजेंसी है, हमको एजेंसी चाहिए. सो वी क्लियरली मेंशन डू नॉट अप्लाई फॉर दिस इफ यू आर डैश. नेक्स्ट, कंपनी साइज प्लस वाइब चेक. कंपनी साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपनी? आर यू 10 people टीम, 12 people टीम, 15 people टीम, 20 people टीम? जैसे हमारे कोई अप्लाई करता है, जब शुरू में करते थे आज 6 महीने पहले, तो उनको लगता था 5-6 लोग काम कर रहे होंगे साथ में, इनके साथ बैठ के काम करना होगा. बट देन ही कम्स इन ब्लैक, ओह इतने सारे लोग हैं और हिमांशु से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, अच्छा फिर मैं नहीं आ रहा. सो टेल द कंपनी साइज दैट वी आर 100+ people, सो दैट दे आर कमिंग विद द माइंडसेट, ओह 100 लोग काम करते हैं ऑलरेडी इस कंपनी में भाई,
तो आई वुड बी समवेयर इन द होल पजल. या आपने लिखा वी आर 3 people together, so they would come in the mindset of oh I need to put that much of effort कि 3 लोग ही हैं, तो चौथा मैं हूँ, so I would have more burden and more responsibility. तो ये मेंशन करना जरूरी है. दूसरा वाइब चेक, कंपनी साइज एंड देन वाइब चेक. हाउ डज द वाइब ऑफ योर कंपनी लुक्स लाइक? हाउ डज द वाइब ऑफ योर कंपनी लुक्स लाइक? The vibe of my company looks like we earn a lot, we spend a lot. Right? The vibe of my company looks like everything is fun except time results. Right? Vibe of my company would look like young. Right? So जो भी होगा I will describe that in a paragraph and I'll put that over here so that the vibe check is also done. अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है इस जॉब पोस्टिंग के नीचे इतना पढ़ने के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है आपके लिए, विच इज गुड बिकॉज ऑल ऑफ अस हैज ऑलवेज वर्कड ऑन समथिंग कॉल्ड एज लीड फ्लो. करेक्ट? किसका लीड फ्लो अभी कांस्टेंट है? बाय रेज ऑफ हैंड्स. लीड फ्लो, लीड्स आती रहती है आपकी पूरे दिन कहीं ना कहीं से, राइट? लीड फ्लो. बट व्हाट यू डोंट हैव समथिंग कॉल्ड एज टैलेंट फ्लो. याद है पिछली बार हमने बात करी थी, देयर आर स्टेजेस टू दिस. द फर्स्ट थिंग दैट यू वर्क ऑन इज व्हाट? क्लाइंट एक्विजिशन. Business is a game of acquisition. First you acquire clients, then business becomes a game of talent acquisition, then business becomes a game of team acquisition. अब आप टैलेंट नहीं, आप पूरी टीम हायर करते हो. जैसे जो वो टर्किश गाय जिनका मैं कॉल बता रहा था, वो एक टीम हायर कर रहा है. मी, पीडी, उत्कर्ष, अमिताभ, एवरीवन, right? So Turkish guy who's sitting on $200 million is not looking for talent acquisition. He's acquiring a team. He's saying भाई तुम 6 लोग एक साथ बहुत बढ़िया खतरनाक काम करते हो. I am asking 6 of you to come. Money is not a problem for me. I want to acquire the whole team because I want the brains of the whole team. So it's called as a team acquisition. When you hire an agency, what is that? Team acquisition, because agency is a team. When you hire an individual media buyer, that is a talent acquisition. तो अभी आप acquire नहीं करते हो, आप basically rent करते हो उनको. But acquire is you acquire the person, right? So customer acquire, then you acquire talent, then you acquire teams. तो यानी कि अब आप एजेंसी को काम नहीं दोगे, आप एजेंसी पूरी उठा ही लेते हो. आप बोलते हो भाई तुम 4 लोग बहुत टैलेंटेड हो, चारों के चारों, तुम्हारी एजेंसी तुम कमाते हो महीने का 3 लाख, मैं तुम्हें देता हूँ महीने का 4, पूरी टीम आ जाओ. तो नाउ यू गेट द होल टीम टू बी एक्वायर्ड बाय यू, बट एनीवेज यू आर गोइंग टू मेक 40 lakhs ऑफ द टीम, सो इट्स फाइन टू पे 4 lakhs. समझ में आया? जैसे अभी ई कॉमर्स वाले गेम में मैं टीम ही ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं करना एक एक करके एक्वायर. मैं टैलेंट एक्वायर नहीं, मैं टीम एक्वायर करूंगा. मैं बस ढूंढ रहा हूँ एक टीम जिसने ई कॉमर्स स्टोर चलाया हो, 1 लाख पर डे, 2 लाख पर डे तक, 3-4 जनों की टीम होगी, वो पूरी की पूरी टीम उठाऊंगा, अपने बिजनेस में लगा दी, काम खत्म, बाहर, जानना ही नहीं कुछ, बिकॉज द टीम नोज व्हाट टू डू अबाउट इट. क्लियर? और एक बार ये होता है, उसके बाद क्या थी नेक्स्ट स्टेप? कंपनी एक्विजिशन. देन यू कम टू कंपनी एक्विजिशन, वेयर यू एक्वायर कंपनी के सिस्टम, कंपनी का टीम, कंपनी का टैलेंट और कंपनी के कस्टमर, सब कुछ एक साथ. देयर 4 स्टेजेस. ठीक है, लास्ट मेगा अपन ने पढ़ा था. तो अगर आपका लीड फ्लो कांस्टेंट है, तो वन थिंग दैट यू नीड टू मेक कांस्टेंट इज अ टैलेंट फ्लो. दैट मींस यू नीड टू हैव अ पाइपलाइन ऑफ टैलेंट. पाइपलाइन ऑफ टैलेंट से आपके पास ये फायदा होता है दैट यू कैन हायर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपके पास एक फ्लो बना हुआ है. यानी कि आज आपने 600 रुपए स्पेंड करे और 400 एप्लीकेशन आई, इसका मतलब ये नहीं 400 में से आज 2 हायर करके हटा दो, वो 398 आर टू बी नर्चर्ड. यू कैन लिटरली सेंड देम 1 मेल अ मंथ टॉकिंग अबाउट योर कंपनी, दैट्स इट. नर्चर करो भाई उनको, बिकॉज अभी हो सकता है 2 महीने बाद वापस रिक्वायरमेंट आएगी, तो फिर एक मेल डालोगे, वी आर ओपन फॉर हायरिंग अगेन, अप्लाई नाउ. तो उन्हीं 398 को चर्न करते रहना आपको. वो 398 400 में से नए आएंगे. ऑब्वियसली यू कैन रन न्यू एड्स एंड गेट न्यू पीपल, पर आपके पास एक लिस्ट भी रेडी होनी चाहिए, बिकॉज एज यू बिकम बिगर you will have more and more friends that you can help as well. जैसे कि आज मेरे को कोई बोले भाई हिमांशु यार क्लोजर ला दो, मेरे को 8 क्लोजर चाहिए, मैं भाई लिस्ट पढ़ी, मेल डाल देता हूँ, देखता हूँ आता है क्या, काम खत्म. I can put a mail over there that this is the X company they're looking for this, you can apply from there. And the people who are looking for jobs would also be looking for your mails. मतलब वो आपको आपके मेल्स को वाइट लेबल करके रखेंगे, भाई इसका मेल आना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर मेल में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, which is useful for us to get a job or something. So the reputation of your companies in front of job seekers become good. और reputation बहुत मैटर करती है, because एक टाइम बाद आप स्केल करते हो तो बंदे सिर्फ reputation पे आते हैं.
बंदे बोलते भाई आपके बारे में बहुत सुना है, आई वांट टू जॉइन इट. आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ पीपल हैव जॉइंड फ्रॉम माय कॉम्पिटिटर्स कंपनी टू माइन. मतलब इनफाइनाइट. मेरा तो काम ही यही है, वहीं से हायर करता हूँ. तुम लोग ट्रेन करो, मैं पैसा कमाऊंगा. सो द जॉब ऑफ देम इज टू ट्रेन देम फॉर 6 months एंड देन दे गट टू नो भाई यहाँ कल्चर बहुत बढ़िया है, माइक्रो मैनेज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. एंड देन दे सेंड मैसेज ऑन लिंक्डइन, कैन आई अप्लाई, इज देयर एनी वे आई कैन गेट इन टच. आई लुक एट दैट थिंग, हम लाइक बट बढ़िया, इसको सब आता है ऑलरेडी, सब सीखा हुआ है, तो एडटेक वाला है, आ जाओ, पे 10,000 एक्स्ट्रा, गेट द पर्सन इन. Boom, he'll do all the work, you don't need to take care of it. He will manage the stress for you and you don't need to come in it. पर उसके लिए पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, टैलेंट फ्लो चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो. और एक का नहीं, मल्टीपल पोजिशंस का, क्लोजर का, ईए का, इसका, उसका. यू वांट टू सी द रिज्यूम ऑफ माय ईएस दैट वी क्वालिफाइड फॉर? यस. घबरा जाओगे, घबरा, बोलो भाई ये ऐसा होता है. बिकॉज आई वांटेड माय ईए टू टॉक टू अ बिलियनियर. आई वाज लाइक, मैं बिलियनर से डील करूंगा तो मेरे ये अगर इंग्लिश बोले तो बिलियनर सोचना चाहिए भाई ये कौन आ गया, और वो मेरा ये होना चाहिए, सो दैट माय रेपुटेशन मेंटेन लाइक दैट. आई जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. उसका एक्सपीरियंस पढ़ के मैंने बोला इससे तो कम पढ़ा लिखा मैं हूं. ये देखो, दिस इज अ पाइपलाइन दैट इज गोइंग. आई विल शो यू हाउ द शीट लुक्स लाइक. ये भी देख लो, ये भी काम का ही है. फोटो ले लो इसकी, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, रिज्यूम का लिंक, एक्सपीरियंस कितने साल का है. रेड मतलब बाहर निकालो, काम का नहीं है, अपने कल्चर के लिए नहीं, करेक्ट, कल्चर के लिए नहीं है. ग्रीन मतलब कल्चर फिट है, ठीक है. तो रेड इज नॉन कल्चर फिट, ग्रीन इज कल्चर फिट. कॉन्टैक्ट नंबर, रिज्यूम का लिंक, एक्सपीरियंस. अभी एक्सपीरियंस कितने साल का है देखो, 11 एक्सपीरियंस, 13 साल, 7 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल. नाउ सैलरी एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज द सैलरी दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? 2.5 lakhs, 2.5 lakhs, 1.5 lakhs, 2.5 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs. These are salaries they expect. ग्रीन मतलब कल्चर फिट है, ये बंदे को हायर करने की सोच सकते हैं. रेड मतलब भगा दो, हमारे काम का नहीं, किसी और के पास भेज दो, किसी और कल्चर का मे भी फिट हो, हमारे लिए फिट नहीं है, ठीक है. अब ऐसे करके पूरी लिस्ट है, देख लो पूरा फ्लो है. ईएस का सिर्फ ईए ये, इट्स अ फ्लो ऑफ हाउ मेनी ईएस? 71 ईएस. इट्स अ फ्लो ऑफ दैट. अभी तुम्हें लगा कि मेरी कंपनी में फॉर एग्जांपल कल को रोहित को हमने और स्किल किया, रोहित के अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, तो कैन वी गिव अ ई टू रोहित? यस. कल सोमेश, अभी सोमेश दुबई और अहमदाबाद दोनों संभालेगा, तो उसको ये लगेगा, विल गिव इट टू हिम. समझ में आया? सो एज वी ग्रो वी नीड मोर इंक्वायरीज. तो उसके लिए हम पहले से लिख करके रखते हैं कि हमारे कल्चर के लिए फिट है कि नहीं बंदा. अगर है तो एक ही दिन में हायर करके बंदे को दिया, भाई तू काम चालू कर, ये रहा बंदा, सॉर्टेड काम. अगेन वन मोर थिंग, देखो अभी सिलेक्टेड का क्या है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिज्यूम लिंक, सैलरी एक्सपेक्टेशन, नोटिस पीरियड, यानी कि इमीडिएट जॉइनर है कि नहीं. हमको इमीडिएट जॉइनर ही चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि भाई 3 महीने लटकाया हुआ है, हम बहुत टाइम नहीं सोचने का 3 महीना. इमीडिएट जॉइनर है कि नहीं. नेक्स्ट, स्क्रीनिंग कॉल हुआ है कि नहीं. तो इधर कौन है, ये सिलेक्टेड ईएस है हमारे, ये सिलेक्टेड, नीचे देखो ये सिलेक्टेड, राइट. तो दीज आर द सिलेक्टेड ईएस वी टॉकिंग अबाउट. अब इसने भी लिस्ट है 7 की. अब वो 7 में स्क्रीनिंग सबका हुआ है कि नहीं, कितने लोगों का स्क्रीनिंग हो गया. आप बोल रहे थे एचआर क्या काम करेगा, ये काम करेगा. वो इतनी बड़ी पाइपलाइन बना कर रखेगा दैट यू आर रेडी फॉर अ 500 crore कंपनी. It's not about you reaching a 500 crore company. It's about you making a system of 500 crore company today so that you get the opportunity and you can go over there. अगर मैं आज आपको अपॉर्चुनिटी दे दूं कि मैं भाई आपके L3 में 2000 लोग भेज रहा हूं, कौन एक्सेप्ट करने को रेडी है? L3 में 2000 लोग भेज रहे हैं, सिस्टम नहीं फेल होना चाहिए. अगर सिस्टम मिला तो देखना कितने लोग रेडी है. नहीं संभाल लेगा नहीं, कितने लोग रेडी आज की मैं ले सकता हूँ, ये देखो 2 हाथ. If you are not ready for 2000 customers, then how the 2000 customers will come? Think about it. रेडी तो बनो 2000 कस्टमर्स के लिए भाई. मैं रेडी हूँ, ऐसे आप भी भेजो 10,000, रेडी बैठा हूं मैं. बिजनेस कोच की ऐसी लिस्ट पड़ी है मेरे पास, इमीडिएट जॉइनर की भीड़ है मेरे पास, 200. आई जस्ट गिव देम कॉल, बी लाइक जॉइन टुमारो. ये इसका स्क्रीनिंग ट्रेनिंग सब हो चुका है, फर्स्ट राउंड सब क्लियर है उसका. टुमारो आई कैन गिव 1 to 2,000 पीपल बाय टुमारो. आपका रेडी करना पड़ेगा ना सिस्टम 2000 के लोग लायक. कुछ लोग अपने एल्बम में 5,000 लोग नहीं भर पाएंगे अभी. अरे यस नो. And if you would not be able to do it, how these people would ever come? अभी साक्षी was faculty तो she has the confidence, हाँ भाई बुला लो, ये faculty है ना. अब वो खुद इन्वॉल्व होती तो बोलती भाई नहीं दो, नहीं हो पाएगा. Because I'll tell you, when you're sitting on tables, when you're sitting on big tables, first of all you will not sit every day. हर रोज नहीं होता कि बड़ी टेबल बैठे हो आप. 4 महीने 5 महीने एक बार आप बड़ी टेबल पे बैठोगे, उधर ही आपको कोई ना कोई डील काटनी है. And when you're sitting on a big table where you can get the big money that you want, at that time you should have the systems ready to get this done, or else you will fail.
आई टेल यू हाउ पीजी एंड मी कनेक्टेड, प्रतीक गौरी एंड मी, ठीक है। अभी हम दोनों बिजनेस पार्टनर है, हम चालू कैसे हुए? आई एम सिटिंग इन हिज होम, वो मेरे को बोलता भाई मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में लोग चाहिए। कितने? तो तू कितने ला पाएगा? ला नंबर बताओ। बोलता है भाई मेरे को 5-10 साल हो गए, मेरा मजा आ जाएगा। अच्छा कितने टाइम में चाहिए? बोले 3 महीना ना, चलो 10 लाख इन 3 मंथ्स करते हैं। तो 10 लाख लोग 3 महीने में? बोला हाँ। बोले अबे ऐसा नहीं होता। मतलब मैं कर दूं तो? पक्का? मतलब पक्का डन, चल भाई चालू कर दे। आई इमीडिएटली, अभी टीम रेडी है, मैं अखिल को कॉल किया, मतलब सारे क्लाइंट फायर कर देना, पर ये डील मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। मेक अ लैंडिंग पेज, गेट द एड अकाउंट रेडी, गेट द फंड, एवरीथिंग रेडी, आई वांट टू स्टार्ट दिस ऑफ, और 1000 लोग मुझे टेलीग्राम पे एसएप चाहिए। उसने चालू करा, इन 15 डेज वी फिल्ड अराउंड 20,000 पीपल। उसने बोला भाई रुक जा, तू सही में कर देगा, रुक जा अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। यू प्रूव्ड योर टैलेंट, गेम ओवर। अभी ही इज डूइंग अ टर्किश डील, मैं साथ में जाऊंगा। अभी इज डूइंग एनी अदर डील, मैं साथ में जाऊंगा। कुछ भी मार्केटिंग काम है, हिमाचल साथ में जाएगा। हो गया मेरा काम, बन गए मेरे $10 मिलियन। समझ में आया? बड़ी डील एक बार आएगी, पर उस टाइम आपको रेडी रहना पड़ेगा, और उस टाइम रेडी होने के लिए आज कॉस्ट उठाओगे। ये कॉस्ट है ना भाई, मेरा एचआर लगा हुआ है ना पूरा दिन ये सब करने में। अरे यस नो, कल को पीजी का फोन आएगा, भाई एक ये चाहिए, अभी भेजता हूँ। कौन सी कंपनी का चाहिए? एक्सेंचर। एक्सेंचर का ई है? मतलब हाँ चाहिए, ये रखा है। पर ये कॉस्ट है ना मेरे लिए। आई एम टेकिंग दिस कॉस्ट टुडे, आई एम हैविंग 10% लेट्स प्रॉफिट्स, भाड़ में नहीं चाहिए, बिकॉज आई गेट अ $10 मिलियन अपॉर्चुनिटी दैट विल हेल्प मी ग्रो इन लाइफ, नॉट दिस 10% का 20 करोड़ का प्रॉफिट साल भर का। तो साल भर का 2 करोड़ बचा के मैं कुछ नहीं उखाड़ने वाला हूँ अपनी लाइफ में, बट द $10 मिलियन डील और $20 मिलियन डील वुड ओनली कम इन माई लाइफ if I am spending that 10% today, so that when I'm sitting on the table I can commit anything I want. मेरे को डर नहीं है। उसमें वाला दुबई शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी सोचो मेरा L1, L2, L3 चल रहा होता है, ऑफलाइन इवेंट है, फिर ये है, उसका वेबिनार लेना है, मैं दुबई शिफ्ट ही नहीं हो सकता। यस नो, उसमें दुबई शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब कल आ रहे हैं, बताओ। बिजनेस मतलब हो जाएगा, तू छोड़ दे। 2 दिन दे, आइस ऑटोमेट करके वापस कॉल करूंगा। आफ्टर 2 days आई लिटरली कॉल्ड हिम, खाली बैठा हूँ क्या करूँ बोल, इसलिए वाली मीटिंग ले ले। हमने कहा बिकॉज आई स्पेंड ऑन द रिसोर्सेज, जिससे वो डील आए तो मैं रुकू नहीं। अभी ऐसा नहीं था मुझे पता है मैं विजनरी हूं कि आने वाली, कुछ नहीं था भाई। आई रिजाइंड ऑन द स्टेज ऑफ आइस, उसके बाद ये आया आपके सामने हुआ सब। मैंने पहले रेजिग्नेशन दिया फिर हुआ, बिकॉज आई एम गेटिंग रेडी कि कैसा कुछ आएगा। नहीं आए कोई बात नहीं, मेरी किस्मत नहीं है, बट आ सकता है। यस नो, मेरा पॉइंट है कि मैं उसको पकड़ पाऊंगा उस टाइम की नहीं, बाय स्पेंडिंग दैट 10% रुपीज एक्स्ट्रा। अभी इसका रिज्यूम देखो, अशरफ का ना, पढ़ लो भाई। एजुकेशन, IIM बैंगलोर, IIT कानपुर, DPS इंद्रपुरम, UPSC सिविल सर्विस, टॉप 0.3 इन 1 मिलियन एप्लीकेंट्स। ये के लिए अप्लाई कर रहा है बाय द वे। ये अभी तुम इसके कॉल पे बैठे हो, 40 लाख रुपए के लिए ये क्लोज करेगा तुमको, मुझे जरूरत ही नहीं जाने की। Because if I'm meeting with a person and my EA goes first to meet that person, he's a person like this. उससे मिलेगा, उससे रैपो बिल्ड कर लेगा, बात भी कर लेगा, बहुत इंटेलिजेंट भी साउंड होगा, सब कुछ होगा, एंड देन आई विल गो लेटर। वंस द कन्वर्सेशन डन, मुझे लग रहा है हम वर्थ इट इंसान मिलना, तो ये बात करेगा पहले, फिर मैं जाऊंगा। अभी इस बंदे को सिखाना पड़ेगा क्या, फॉलोअप कैसे लेते हैं, झाड़ते कैसे किसी को, काम कैसे करवाते हैं, कुछ करना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि हाउ पॉलिश पीपल लुक लाइक, इसको बताना पड़ेगा मैनर्स एंड एटिक्स, कुछ नहीं। कल को उसको प्राइवेट जेट में लेके जाऊंगा तो ये मेरे साथ चलेगा, उसको सारे रूल्स बताऊंगे मुझसे। समझ में आया? अभी बहुत महंगा आदमी, लेकिन ऑब्वियसली महंगा है, नॉट दैट मच, 2.5 lakhs a month, पर महंगा आदमी, बट क्वालिटी देखो आप। अभी तो रुको, कंसल्टिंग एक्सपीरियंस, ओलिवर वाइमन वाज अ कंसल्टेंट, ठीक है, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट फुल टाइम, सऊदी ऑफिस, जीसीसी डेवलपमेंट बैंक, जीसीसी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल एनर्जी को, लीडिंग साउथ अफ्रीकन बैंक, बिजनेस डेवलपमेंट, देन मैकेंजी में काम किया, समर एसोसिएट फुल टाइम, सस्टेनेबल प्रोग्राम ऑफ $28 million मेड, डेवलप 40 million plus PPE ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएटेड अ ब्लू बुक एंड एसओपीज। ब्लू बुक किसको पता है इस रूम में? देखना हाथ, 2 लोग। आप तो यूट्यूब इंडिया हेड थे इसलिए।
आप यूएस में थे, ये यूट्यूब इंडिया हेड थे, इसलिए दो जगह को पता है। ब्लू बुक क्या होती है बता दो चलो। डज दैट मेक सेंस? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये होता है टैलेंट। अब तुम बोलते हो नहीं नहीं ये तो मैं घर पे कर लूंगा, कर लो। You are not the expert, guys. These people are. You don't even know the words ka meaning. You have not worked in Saudi ka bank. You have not lead a South African bank. You have not done all of that. You can't do it. It's not your expertise. जो है उसको करो ना भाई. Right? Then Godera strategy consultant, ITC limited industry experience, kites summer intern, technical skills, जो भी है इसकी position और responsibility, जो भी पाइथन वाइथन स्टूडेंट नॉमिनी सेक्रेटरी ये वो फलाना निकालना, स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट, केवाईवी पर स्कॉलरशिप, AIR 43 amongst 14 lakh JEE मेंस, ग्लोबल रैंक 43 amongst 78 के इंटरनेशनल ओलंपियाड पीपल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनालिटिक्स, सोशल इनिशिएटिव्स, एरो मॉडलिंग, लाइटनरी पता नहीं क्या होता है, लिटररी सॉरी, जो भी होता है ये, क्योंकि तुमने कंपनी का उतना बड़ा ब्रांड बना रखा है कि जब वो कंपनी की हिस्ट्री खोल के देखे और बोले बंदा 6,000 की जॉब से 4 करोड़ का एम्पायर बना रहा है पर मंथ का, तो शायद मेरे से कुछ ज्यादा आता होगा। द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी मैटर्स मोर। इसलिए मैं अपना ब्रांड टीयर 3 गरीबों के सामने नहीं बनाता हूँ, मैं अपना ब्रांड यहाँ बनाता हूँ। जो मेरी रील्स और कंटेंट बनता है वो इन लोगों के लिए बनता है, क्योंकि यही लोग देख रहे हैं वो कंटेंट, मुझे पता है ये लोग देख रहे हैं। मैं रेजर पे जाके मैकेंजी अगर टाइप करूंगा ना, यू विल सी सो मेनी एम्प्लॉयज ऑफ मैकेंजी हैव अप्लाइड फॉर एआई फन वर्कशॉप। उस दिन अखिल ने भेजा था, अखिल कहाँ है? अखिल ने भेजा था उस दिन, भैया मैकेंजी के लोग अप्लाई करें, मैंने वही लोग आएंगे, उनको समझ में आ रही है बात। आई एम रेडी टू पे अ हायर कॉस्ट पर लीड बट आई वांट द क्वालिटी ऑफ पर्सन दैट आई वांट। ये एक रेज्यूम है। अभी इसको भी हम सिलेक्ट नहीं कर रहे कि भाई इतना रेज्यूम दिख रहा है तो आजा आजा, नहीं 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 भाई, कहां से आजा, अभी प्रोसेस चालू होगी भाई साहब। ये हुआ आपका स्क्रीनिंग कॉल, फीडबैक हुआ, फर्स्ट राउंड, इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम, इंटरव्यू डन, इंटरव्यू का लिंक आए क्योंकि मैं देखूंगा उसकी रिकॉर्डिंग अगर मैं हायर कर रहा हूं तो। लास्ट राउंड फीडबैक, इंटरव्यू लिंक, रिकॉर्डिंग स्क्रीन बाय, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, उसके बाद बोलूंगा चलो ठीक है, नाउ वर्थ इट टू स्पेंड टाइम विद हिम 1 hour टू सी ये मेरा ये बन सकता है कि नहीं। दैट्स हाउ द प्रोसेस इज डन। एक बंदा मिलेगा पर वो एक बंदा 4 साल के लिए सबकी वाट लगा देगा। डज दैट मेक सेंस? I can spend 30,000, 50,000 a year, but they cannot compete with this guy. ये बंदे को मेरे को सिर्फ इतना बोलना है, कल मेरी मीटिंग रितेश अग्रवाल से करा दो। इसको ये नहीं बोलना नंबर ढूंढ, ये करा दो। वो तेरा दिमाग है, तू कैसे कराए, मेरे को नहीं मतलब। तू उसको क्या बोले, तू उसके घर जा, तू उसकी गाड़ी चुरा, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे को मीटिंग चाहिए एंड ही विल डू इट बिकॉज ही हैज द कैपेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। समझ में आ रहा है? Drink Up founding member, Source One business head, Daraju sales and marketing manager, Kellogg's company regional sales manager, education IIM, Monad University, Bachelor of Science major in physics। क्या क्या करता है? हाँ ये मुझे पसंद आया था ना, हाँ ये मुझे पसंद आया था, ये देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लीडरशिप, सेल्स, मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, NFT, चेस, क्रिकेट, स्विमिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक। मतलब बढ़िया मेरे वाले, राइट? तो ये मुझे पसंद आया था, मतलब लगा भाई ये बढ़िया लग रहा है बंदा, क्योंकि इसके इंटरेस्ट मैच हो रहा है। क्वालिफिकेशन तो बाहर में जाए, वो तो सबका होना ही चाहिए, मिनिमम कैटेगरी हो। नाउ इमेजिन सेम काइंड ऑफ रिज्यूम फॉर क्लोजर्स। क्लोज 14 years फॉर मैकेंजी। क्या ही 40 लाख का बेचेगा? बोलेगा नहीं बेच रहा, सस्ता है। नो, बिकॉज दे क्लोज फॉर $20 million ना, तो दे वुड लाइक भाई ये क्या बकवास करवा रहे हो मुझसे, 4 लाख कमीशन बनेगा, नहीं चाहिए, अपने पास रख ले। एंड वी हैव फाउंड दोस, मतलब मैं जाता हूँ कॉल, वो बेइज्जती करके भगाते हैं भाई, लिटरली देगा। मैं बोला भाई मैकेंजी का क्लोजर है, 9 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को चाहिए यार, ये बंदा मिल जाए मजा आ जाएगा, बीडी करेगा, दबा के निकालेगा सेल्स। बोला व्हाट्स योर हाईएस्ट टिकट? आई एम लाइक 40 lakhs। इज लाइक सॉरी ब्रो कांट वर्क। भगा दिया मेरे को, बोले सॉरी ब्रो कांट वर्क। मेरे एक दोस्त ने रेफरल भेजा था मेरे को, बोले भाई इससे बात कर ले। मतलब भाई वो बेइज्जती करा मेरी, बोला टू जी, मतलब ये कौन सी टिकट पे काम करते? बोले मिनिमम $5 million a year, उसके नीचे तो बात ही नहीं करते, उनकी टिकट है ही नहीं उससे नीचे। अब ये बंदा तुम्हारी टीम में और ये क्लोजिंग कर रहा है, तुम्हें कहां से क्लोजर की जरूरत? तुम्हें पता तुम्हें सेल्स टीम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेली सब खड़ी कर देगा ना, बिकॉज ही हैज दैट टैलेंट। पर महंगे आदमी है भाई, पैसा बहुत लगता है।
but it's worth it because the moment that person comes, he will bring so much knowledge एक साथ, क्योंकि वो आते ही बोलेगा ये बकवास ये बकवास ये बकवास ये बकवास, बढ़िया हमें यही सुनना था। अगर बोले ये भी बढ़िया ये भी बढ़िया ये भी बढ़िया, तो तू क्यों आ रहा है, हमको तो पता है बढ़िया है। If you come in, the first thing you tell me that 6 things in your business is wrong, I'm happy now, tell me what is wrong, और वो तो इम्प्रूव कर मेरा पहला दिन से, भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बता ना। ये देखो प्राइस लिखे इनके, अरे भाई बोली थोड़ी ना लगे प्राइस के। एक है 4.5 लाख, फिर 2.5 लाख, 2.9, 3 लाख, 2.5 लाख, 2.3, 6.8 लाख, 6.8 पर मंथ है ना, 7 लाख रुपए महीना ले रहा है वो, यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा उतना। ये सब अच्छा लग रहा है फिर तो मेरे को, अगर 7 लाख डिमांड कर रहा तो कुछ तो दम होगा इसमें। तो जो फोड़ता है वो जल्दी ही फोड़ता है। हाँ बट इफ आई शो ऑल्सो, उसमें पढ़ भी लोग अपडेट्स भी लिखी होगी उसने, झूठ तो बोल ही सकता हूँ, पागल ने 7 लाख में झूठ बोलेगा रोहित। इसका देखो, इसका 8 years एक्सपीरियंस है और 3 लाख मांग रहा है, ठीक है, इसका खोल के देखते हैं। ही कैन नॉट टेल लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जो लोग लाइक दे आर लाइक बॉर्न वेरी इंटेलिजेंट, मतलब समझ रहे हो, ये लोग ऐसे होते हैं कि जो उसने लिखा होगा ना ओलंपियाड विनर, वो 5th क्लास में होगा, तो वो इंटरनेशनल 48 टॉप 48 में 5th क्लास में ही आ चुका था, हो सकता है मे बी, बट जो लिखते हैं वो सही लिखते हैं। मतलब अगर 1 year है तो 1 year ही होगा, मतलब वर्किंग 1 year होगा। पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं अपन, फिर उसका रिज्यूम वगैरह मंगाते हैं, फिर यहाँ डालते हैं ना, ठीक है। सो वी ब्रिंग द रिज्यूम, वी डू अ बैकग्राउंड चेक, फिर यहाँ पे आता है। इसका पढ़ लो भाई, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट, एडवांस एक्सीलेंट डेटा विजुअलाइजेशन 2018, एजुकेशन IIM वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस स्टैशफिन फिनटेक, RSPL, अगली कंपनी कौन सी है इसकी, एक्सेंचर, अगली कंपनी फिजिट्सू कंसल्टिंग, अगली, बस यही, बस और कुछ भी नहीं है। This is how it happens. But you got the point? We are not looking for leads. So imagine a person like this is in your team. You would not look for leads and customers. You will just ask him, कल तक 5,000 कस्टमर चाहिए, अब तू जो करना कर, मेरे को 1 महीने बाद 5,000 चाहिए, ये कर देगा। Because they have that much intelligence and experience to do that. Because they have done it again and again. तो आप इनके पास जाओ और बस ऑर्डर दो, मुझे ये चाहिए, ये बस बोलेंगे उसका इतना कॉस्ट लगेगा, आप दो, वो काम हो जाएगा। That's how it works. It's like a hotel का रिसेप्शन, कॉल करो, एक कैपुचिनो 400 लगेगा, भेज दो, डन। भाई इट्स जस्ट लाइक दैट। अभी कितने लोगों को लग रहा है कि वो ऐसा सिस्टम खुद बना लेते, ये इंटरव्यू वाला और ऐसे लोग ढूंढना सब खुद कर लेते क्या? That's why you need HR. तो एक गुड HR कम्स बिग सिस्टम्स लाइक दीज, कि उसको अपन बोलेगा परसों इतने लोग चाहिए, उसने सब बना रहा, उसको पता है क्या करना है। अभी ये बंदा हायर हुआ, अब हायर होने के बाद देखिए क्या चीजें होती है, बंदा आएगा, उसका पहले एक ओरिएंटेशन कॉल होगा, वो कौन करेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ओरिएंटेशन कॉल होने के बाद उसको एक टीम मीट करेंगे, भाई सब टीम में उसको जान लो कौन क्या करता है, ठीक है, किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी, कौन कौन सी पोजीशन पे, पहले वो जान लो, ठीक है। नंबर 3, अभी मेरा कॉल चालू होगा, अब मैं बोलूँगा भाई चल ठीक है, पहले रैपो बिल्ड करूँगा, एक कॉल उससे समझूंगा क्या करता क्या, ये कैसा आदमी है, ऑल ऑफ दैट। फिर उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके एड्रेस पे कुछ सामान जाएगा, फिर उसके उधर से एक KYC होके कुछ आएगा, कुछ होता है ना, वो क्या होता है पता नहीं, कुछ KYC करके लोग मंगाते हैं वहाँ से, वो होगा। एक बार वो होगा, उसके बाद उसके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, फिर उसका PF कटने का पूरा उसको जो दिया जाता है इतना बड़ा चिट्ठा, वो दिया जाएगा, फिर वो साइन करेगा, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करेगा, कंपनी के पॉलिसीज पे साइन करेगा, अगर तू छोड़ के गया तो हमारा डेटा चुरा के नहीं जाएगा, उस पर साइन करेगा, 1,000 चीजों पे साइन करेगा। नाउ यू आर प्रॉपरली हायर्ड, आप काम चालू करते हैं। अभी आप ये खुद करने लगे तो हो गया कल्याण। दैट्स व्हाई यू नीड HR टू डू। ऐसे यू नीड अ सेल्स मैनेजर, ऐसे यू नीड अ मार्केटिंग मैनेजर, दीज पीपल यू नीड सो दैट दे कैन डू इट वर्क। अभी आई वाज टॉकिंग टू PD, उसका मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, उसका नाम उत्कर्ष। तो मैं बोला यार मेरी 299 की वर्कशॉप होती है इंडिया में, मैंने काइंड ऑफ सैचुरेट कर दिया मार्केट, 45,000 लोग ले चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ इनको लग नहीं रहे, हु वुड बाय इट एट दिस प्राइस पॉइंट। तो अच्छा, सब उसने देखा, बोले CP क्या आ रहा है, 200, 1200, फिर तो 200 रुपये का काम है। मतलब अगर ये हो गया, गलती से भी तू 200 ले आया, तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे सब।
तो बोलता है बट इट इज नॉट अ थिंग ओवर 200, लेट मी शो यू व्हाई। कुछ टिश्यू पेपर बनाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ बनाया, वो बैच वैच किया, बोले देख 180 आ रहा है नंबर, इससे ऊपर जा नहीं सकता। मतलब अगर तू गलती से भी ला दे, गलती से भी तू 7 दिन के लिए भी ला दे, मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ 7 दिन के अंदर सब कुछ, बिकॉज दैट्स टू लेस ऑफ अ सीपी दैट कैन कम, बट इज लाइक नो इट्स पॉसिबल। मैं पर तू ये कैसे बोल रहा है? बोले भाई मेरे मार्केटिंग मैनेजर बोल दिया, मतलब पॉसिबल है। मैं पूछा इसकी सैलरी क्या है? 12 लाख रुपए महीना। 12 लाख रुपए महीना। कितने साल का लड़का है वो? 26। 26 साल। पर क्या लेता हूँ? 12 लाख रुपए महीना, एक एम्प्लॉय की सैलरी। एंड पीडी से हाँ तो कोई बात नहीं ना, क्या है? बिकॉज विद हिज हेल्प ही कैन गेट अ $200 मिलियन डील। क्योंकि ये चीज वही क्रैक कर पाएगा ना। अभी मुझे पीडी बोले कि भाई मैं तेरा सीपीयू 200 ला के देता हूँ कंसिस्टेंटली, कितना देगा? मैं बोलो जो तू बोले, एनी अमाउंट। इफ यू कैन गेट माई सीपीए बाय 6 times half, माई प्रॉफिट गोज 6 times अप। एनी अमाउंट यू से एम रेडी टू पे। करेक्ट? आपका सीपीए 6 गुना कम हो रहा है आज, कितना पैसा दोगे? आप बोलोगे मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम। करेक्ट? मैं तो कर दूं भाई, कर दे 6 टाइम लेस, मैं 4 प्रॉपर्टी ले लूंगा एक साथ एक महीने में। बट he needs to take an expense of 12 lakhs a month to afford the deal that only he can sit on, nobody else. अभी मैं उस डील में बैठूंगा भी नहीं, टर्किश वाले मेरे पास आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? भले मैं भी मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मेरे ऐड ज्यादा चलते, मेरा चेहरा ज्यादा लोगों ने देखा है, बट दे विल नेवर कम टू मी because I don't have that team and they can sense it, they can see it. There are 2 questions I don't know the answer of. अभी सोमेश आएगा, उससे पूछना। कल टर्की डील में उसके लैपटॉप पे बैठी, उसके लैपटॉप से ले रहा था, मेरा लैपटॉप खराब था, मैं उसके लैपटॉप से डील ले रहा था। वो बहुत कुछ बोले, फिर सोमेश बोले भाई मेरे को समझा दे, मतलब मेरे को खुद को कुछ समझ नहीं आया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, उन्हें मार्केटिंग के क्या बात करी, कुछ समझ नहीं आया। एंड दे डिड अ होल कॉल ऑफ हाफ एन आवर में, बस बैठूं लाइक क्या बातें चल रही है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक क्लोकिंग करके वर्ड है वो समझ में आया मेरे को, भाई कुछ समझ नहीं आया। एंड देन आई कॉल पीडीएल, मतलब भाई क्या क्या हुआ था, ये कॉन्टेक्स्ट तो समझा तो सीख क्या था। फिर उसने बिसी नाम समझा ये मतलब था इसका, मतलब अच्छा। बट दोस पीपल आर विद हिम, दैट्स व्हाई ही कैन डू दैट। वो कॉस्ट पहले उठाना पड़ता है, देन यू कैन बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, अभी क्लोजेस वाली पे आते हैं। लोड हो गई, अरे बाप रे सब बाहर। अभी ये क्या लिस्ट है? अब सब डिलीट कर देना, इनको रखो बस। तो मैं किसका देखूं इसमें भाई? चलो इसका देखते हैं, कौन है ये? मेहरुनिशा। ये भी सेम फॉर्मेट है। हाँ, स्क्रीनिंग कॉल, फीडबैक ऑफ स्क्रीनर, फर्स्ट राउंड। अभी देखो फर्स्ट राउंड, अभी ये यस है पर फिर भी रेड है। फर्स्ट राउंड क्लियर था पर रेड है, क्योंकि उसके बाद सही नहीं जमा। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम, इंटरव्यू डन, इंटरव्यू का लिंक। अब देखो इंटरव्यू का लिंक, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो दृष्टि स्पेशली ले रही है कॉल। दृष्टि, ये बंदा 20 मिनट के पूरे कॉल की रिकॉर्डिंग, ये कॉल को रिकॉर्ड किया, इसको यूट्यूब पे अपलोड किया अनलिस्टेड। कौन से चैनल पे? दृष्टि के चैनल पे, क्योंकि दृष्टि ने लिया है। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पे गई लिंक। लास्ट राउंड का फीडबैक क्या हुआ? स्क्रीन्ड बाय होम, स्क्रीनिंग करने के बाद क्या रिजल्ट आया, एंड देन व्हाट आर द फाइनल पीपल सिलेक्टेड। तो इतने करने के बाद कुछ चुनिंदा आपको 10 मिलते हैं, और आप कितने इंटरव्यू लेते हो? 3। हिमांशु सही बंदा नहीं मिला, वेरी गुड। कैसे मिलेगा? 3 इंटरव्यू लिए तुमने पूरे महीने में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम 10 लोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। That's why you need a person who can do all of this. The faster you can have the churn rate of the team, the better it is. Because with that, you will get to your final 6 very soon. Once you have your final 6, building a 50-member team, 100-member team is jokes. But you need your 5 or 6. एकदम टॉप, मतलब मस्त लोग, जो इस टाइप के रिज्यूम देखे। इस टाइप के 5 से 6 लोग तुम्हें चाहिए, जिनका एकदम दिमाग खराब ट्रैक रिकॉर्ड हो। Once these 5-6 people are there, building a 50-100 people team in 1 year is a joke from there. Because these people just come and destroy their segment. अगर operations में हुए, sales में हुए, market जिसमें भी हुए, they'll just destroy the track records over there, जो भी तुम्हारी कंपनी ने आज तक बनाए। You are happy, you keep on hiring more people so you can have a bigger churn rate, then you go from your top 6 to top 15.
I hope you understood what are the different mistakes you're doing in your business right now in hiring. So let me know in the comments what mistakes you were doing earlier, and also let me know in the comments what else problem you want me to solve. If you're new to the channel, click on the subscribe button because that motivates us to make more videos like this, and share this video with a friend who you might think is not good at hiring.